Hey everyone, long time no see, huh? I took a bit of a break before making this video, but I feel that it's a good thing क्योंकि जब तक मन में कोई भाव या कोई टॉपिक प्रगाढ़ नहीं होता तब तक I feel that I should delay making a video. Um, the aim of this channel was never to become a mass audience channel. It was very specifically made for a certain set of people, which are my friends or family or people who are really interested into such topics. Because the idea was that I can share my thoughts and viewpoints on such topics related to spirituality and human psychology, and then if someone is interested, they can share their viewpoint or have a discussion, even debate or challenge my viewpoints, and I can have a detailed conversation with them. So this was the idea, though I had certain ideas on how to gain public attention. One of them was like maybe so there are multiple people who speak about spirituality or give their spiritual discourses on YouTube, and maybe I can react to them or give my point of view or opinions on them. For example, there are like Bageshwar Dham Babaji or Premanand Babaji, the one with beard and dreadlocks. So they are gaining a lot of public attention, and by speaking on them, it will definitely catch public eye. But then I feel that such videos or such viewpoints would be made for public, and they'll not be true, or like they'll not be aligning to the essence of this channel. So I felt that it's not a good idea for now. Maybe in the near future I can look for it. Anyways, like talking these couple of minutes on camera makes me a lot more comfortable to dive into the topic. I'll keep it in Hindi. I don't know why I start speaking English in front of camera. Maybe because I have my official meetings on this laptop. That's why I have a habit of speaking in English. But I'll keep this video in Hindi, and the topic for today is love, and that is प्रेम. तो हम प्रेम के बारे में बात करेंगे. बहुत ही रेलेवेंट टॉपिक है, स्पेशली फॉर पीपल इन माई एज, लाइक इन द 20s और 30s, बट इट्स रेलेवेंट फॉर एवरीवन. मेरा मन था कि हम डेस्टिनी के बारे में बात करें. मैं काफ़ी समय से सोच रहा था, पर शायद अभी भी वो हमारी डेस्टिनी में नहीं है, तो शायद किसी और दिन. तो प्रेम है क्या? लोग बहुत बातें करते हैं, बहुत चीज़ों के बारे में कहते हैं कि वो प्रेम करते हैं या इन चीज़ों के साथ बंधे हुए हैं. जैसे कि लोग अपने बिजनेस के बारे में कह सकते हैं, अपने काम के बारे में एक आर्टिस्ट कह सकता है, या अपने पार्टनर के बारे में ऐसा कह पाते हैं, या फिर अपने देश के बारे में, अपने धर्म के बारे में लोग कहते हैं कि बहुत प्रेम करते हैं इन सब चीज़ों से. इतना करते हैं कि वो कुछ भी करने को तैयार हैं. एक आर्टिस्ट अपनी कला से प्रेम करके उसके लिए अपना सारा जीवन बिताने को तैयार है. एक प्रेमी अपनी प्रेमिका के लिए या वैसा वर्सा जान तक देने को तैयार है. और एक फौजी अपने देश प्रेम के लिए किसी की जान लेने को भी तैयार है. आजकल तो लोग धर्म के लिए भी जान लेने को तैयार हैं. वैसे भगवान कृष्ण ने कहा था कि धर्म की स्थापना करना बहुत ज़रूरी है. I'll speak about this in some other topic or other video. But anyways, कहने का मतलब ये है कि लोग प्रेम में इतना ज़्यादा इन्वेस्ट करने को तैयार हैं, पर वो प्रेम है क्या? क्या प्रेम ऐसा है कि आप आज किसी चीज़ से करते हैं या आज किसी व्यक्ति से करते हैं और कल वो करना कम कर दें या बंद कर दें, लेट अलोन की नफ़रत करना शुरू कर दें या बिल्कुल ही नकार दें उस चीज़ को? पर क्या प्रेम ऐसे कम ज़्यादा हो सकता है? क्या बदल सकता है? बहुत सारे लोग अपना धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, और विदेश में तो डाइवोर्स बहुत ही कॉमन है. आजकल का समाज इंडिया में भी इसको एडवोकेट कर रहा है. आई डोंट नो इट्स अ गुड थिंग और अ बैड थिंग, बट अगेन अनदर डे अनदर टॉपिक. बट
tend to do this. Like, people tend to change their business in which they have invested their 5, 10, 15, 20 years of their life, put in their blood and sweat, and then they change, and they change their lifestyles, they change their thinking, everything that they once told that they were in love with. So is it even possible in love that you can do these changes? And is it love or is it something else? तो क्या ये प्रेम है? इसका जवाब है हाँ, और इसका जवाब है ना। दोनों ही जवाब हो सकते हैं, क्योंकि जो ये प्रेम है इसमें आप नोटिस करेंगे कि ये व्यक्ति जो है अपने मोह के मूल्यों पर बनाता है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान अपने आप से बहुत ही ज़्यादा प्रेम करता है। वो अपनी सोच से, अपने विचारों से, उन चीज़ों से जिनसे वो आइडेंटिफाई करता है, उनसे बहुत ही ज़्यादा प्रेम करता है। और इसके कारण जो भी चीज़ें उसके आइडेंटिटी के साथ अलाइन होती है, जैसे कि वो जिस धर्म का होता है, वह जिस देश का होता है, वह जिस कला में अपना प्रैक्टिस या अपना जीवन व्यतीत करता है सीखते हुए, वह जिस इंसान को अपनी सोच में अच्छा मानता है, अपने साथ जुड़ा हुआ मानता है, उन सब चीज़ों से प्रेम कर लेता है या कहता है कि मैं प्रेम करता हूँ। पर जब भी कोई इमोशन मोह के मूल्यों पर या मोह के बेस पर निर्धारित या आधारित होगा, वह आपको दुख ही दे सकता है, या वह आपको लिबरल या एक फ्री जीवन देने में सक्षम नहीं हो पाएगा। वह आपकी आध्यात्मिक उन्नति की तरफ बाधा बनेगा। अब ये बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, क्योंकि प्रेम पे हर व्यक्ति का अधिकार है। मानवता का बहुत ही एक उच्चतम या बहुत ही एक महत्वपूर्ण अंग है, या प्रेम को तो सबसे दिव्य भाव कहा जाता है। तो इसके बारे में कहने से पहले मैं बहुत बार सोच लेता हूँ। मैंने जीवन में कभी इस टॉपिक पर इतना डिटेल में बात नहीं करी है, पर हम एक बार सांसारिक प्रेम को थोड़ा सा गहराई से जानते हैं। अब माँ के प्रेम को सबसे उच्चतम दर्जा दिया जाता है, तो पर माँ का प्रेम भी एक सांसारिक प्रेम ही है, जो मोह के कारण ही उत्पन्न होता है। आप इमेजिन करिए कि एक माँ ने एक बच्चे का पालन करा, मान लीजिए 15 साल तक, जब तक उसे अपनी माँ की सबसे ज़्यादा आवश्यकता थी। 15 साल के बाद माँ को पता चला कि वह उसका असली पुत्र नहीं है, वह असली पुत्र अस्पताल में बदल दिया गया था, तो अब उसका असली पुत्र कोई और है। तो आप देखेंगे कि जो माँ के मन में ममता का भाव है, वह उस दूसरे पुत्र के प्रति जो अभी अभी मिला है, उसके प्रति जागृत हो जाएगा और इस पुत्र के प्रति कम हो जाएगा। अब बिल्कुल समाप्त नहीं होगा, क्योंकि उसने 15 साल उस बच्चे का पालन करा है, तो वह उन कार्य, उन क्रियाओं के प्रति बंध जाएंगे। अब इसी विचार को 3 महीने बाद या बिल्कुल उसी क्षण, लाइक 1 घंटे बाद ही इमेजिन करिए कि एक माँ है जिसने अपने बच्चे को गोद में लिया पहली बार। उसके मन में वह ममता का भाव जागृत हुआ। वो अपने बच्चे को निहार रही है, देख रही है, और 1 घंटे के बाद उसे पता चलता है कि वह उसका पुत्र नहीं है, उसका पुत्र वह दूसरे वाला बच्चा है जो साइड के क्रैडल में है। आप देखेंगे कि उसी क्षण जो माँ है उस बच्चे को रखेगी और दूसरे बच्चे को गोद में उठा लेगी, और इसके प्रति रोने भी, हो सकता है रोने भी लग जाए कि मैं तो कहाँ तुम्हें खो देती, या तुम कहाँ चले जाते। तो एकदम से वो ममता का भाव गायब हो जाता है। तो again, I'll say that it's a sensitive topic and it's a very radical thinking, but if you think with a broad mind, it may make some sense for you as well. लेकिन इसमें बुराई क्या है? इसमें गलत क्या है इस प्रेम में? संसार में रहते हैं तो मोहवश प्रेम होना तो स्वाभाविक ही है, ये तो मानव स्वभाव ही है। और ये बहुत ही गहरा सच है कि मानव किसी भी चीज़ को या किसी भी व्यक्ति को प्रेम करने के सक्षम नहीं है। मानव सिर्फ और सिर्फ अपने आप से प्रेम कर सकता है, सिर्फ अपनी सोच से प्रेम कर सकता है।
लेकिन इसमें नुकसान की बात ये है, जब भी आपका प्रेम मोह पर आधारित होता है तो वह आपको दुख देगा ही। ये निर्धारित है कि आपको दुख मिलेगा ही, क्योंकि जब भी आपके मन में मोह का भाव उत्पन्न होगा तो वह अपने आप ही ईगो का भाव और भय का भाव और ये सारे नेगेटिव इमोशंस को उत्पन्न कर देगा। कैसे? जो व्यक्ति मोहवश प्रेम करते हैं उनके मन में एक भाव अपने आप जागृत हो जाता है कि ये मेरे पास आज तो है, पर अगर कल रहा या नहीं रहा तो, या कल इसी प्रकार से नहीं रहा तो, जैसे वो चाहते हैं वैसा नहीं रहा तो। इस भाव को थोड़ा स्पष्ट तरीके से अगर कहा जाए तो वह अपने जीवन की सभी चीजें, अपने जीवन का सभी भावनाओं को, सभी सपनों को, सभी एक्सपेक्टेशंस को उस प्रेम के वस्तु के साथ बांध लेते हैं जिनके साथ उनका मोह का भाव है। जैसे माँ अपने बच्चे के साथ, एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस के साथ, आर्टिस्ट अपनी कला के साथ, व्यक्ति अपने बैंक बैलेंस के साथ उस प्रेम को इतना बांध लेते हैं, और जब भी वह उनके हिसाब से नहीं चलता है तो उन्हें दुख होता है। और ऐसा बहुत बार हो सकता है कि वह उनके हिसाब से ना चले, और जब जब ये थोड़ा थोड़ा दुख होता है उनके मन में वह डर बड़ा होने लग जाता है कि ये क्या, ये ऐसा रहेगा सभी या सारे समय तक, और अगर ऐसा नहीं रहा तो। और धीरे धीरे ये डर और ये भाव एक बोझ की तरह जीवन में बैठता चला जाता है। धीरे धीरे ये चुभता चला जाता है, आपको दबाता चला जाता है, और ये होना लगभग निश्चित ही होता है। जैसे अगर आप आग में कूदे तो जलना निश्चित हो जाता है, वैसे ही जब आप मोहवश प्रेम करें तो ये भय का भाव आना निश्चित हो जाता है। पर यह तो सिर्फ एक बात है। अब इसी में थोड़ा सा आगे बढ़कर देखा जाए तो संसारिक चीजें तो सारी क्षणिक हैं, सारी ही टेम्परेरी है, और ये तो सांसारिक चीजों का नियम है कि वह कल किसी और की थी, आज आपकी है और कल किसी और की होंगी। ये सभी ही सांसारिक चीजों पर यह नियम लागू होता है। तो अभी तक तो आपके मन में सिर्फ भय था कि ऐसा रहे या ना रहे, परंतु यह होना भी संभव है कि आप जिस चीज से प्रेम कर रहे हैं वह अगले ही क्षण आपके पास से चला जाए। जैसे अगर आपके पास पैसा है और आपको उससे बहुत प्रेम है, प्रॉपर्टी है और आपको उससे बहुत प्रेम है, या किसी व्यक्ति से आपको बहुत प्रेम है, वो कल या अगले ही क्षण आपके साथ ना रहे। और यह चीज आपको इतना ज्यादा दुख दे सकती है क्योंकि मोहवश प्रेम में आपके सारे सपने भी जुड़े हैं, आपके जीवन का सारा सार जुड़ा है, यहाँ तक कि आपकी आइडेंटिटी को भी आप उसी के साथ जोड़ लेते हैं, तो वह एक साथ जुड़ जाता है। और जैसे ही कुछ बदलाव आता है तो इतना दुख का अनुभव होता है जिसकी व्याख्या करना अत्यधिक कठिन है। और माने या ना माने, यह दुख आपने अपने आप या अपने खुद की तरफ से चुना होता है। इसमें आपके ग्रहों का या दैविक शक्तियों का, भगवान का या प्रकृति का कोई दोष नहीं कहा जा सकता है। अब सवाल आता है कि प्रेम का भाव तो मानवता में सबसे ऊंचा कहा जाता है और इसका बहुत ही महत्व है, तो क्या प्रेम करना ही गलत है? अगर प्रेम से दुख ही मिल रहा है तो क्यों इसकी इतनी बड़ी बड़ी व्याख्याएं की जाती हैं, क्यों इसको इतना मूल्य दिया जाता है या क्यों इसको इतना महत्व दिया जाता है? तो इसके बहुत सारे कारण हैं। जो सांसारिक प्रेम की इतने महत्व का कारण है वो यह है कि सांसारिक प्रेम आपको कार्य करने की क्षमता देता है। आप सांसारिक मोह के बंधन में बंधकर ऐसे कर्म कर सकते हैं जो आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते कि आप कर पाते हैं। तो यह तो एक एनर्जी जागृत करना या आपकी शक्तियां जागृत करने जैसा ही काम करता है। परंतु यही प्रेम अगर आप आध्यात्मिक तरीके से जागृत कर लें तो यह आपको ऐसी शक्तियां देगा, यह सिर्फ आपको सांसारिक फायदे नहीं बल्कि आध्यात्मिक तौर पे भी इतनी उन्नति दे सकता है जिसका कोई
कंपैरिजन ही नहीं है, जिसका कोई तोड़ ही नहीं है। आपका ये ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन कर सकता है, प्रेम का भाव आपको ऐसा मनुष्य बना सकता है जो मनुष्यता में सबसे उच्च कोटि का दर्जा कहा जा सकता हो। अब ऐसा कैसे हो सकता है, या आध्यात्मिक प्रेम को कैसे पहचाना जाए, कैसे मन में प्रगाढ़ किया जाए और कैसे उस पथ पर चला जाए? तो जैसा मैंने कहा था कि इंसान का स्वभाव ही ऐसा है कि वह किसी से प्रेम नहीं कर सकता है। यहाँ तक कि जो मैं कहता हूँ कि इंसान खुद से प्रेम करता है, वहाँ पे भी यह ज़रूरी नहीं है कि उसका खुद से प्रेम करना उसको फ़ायदा ही दे रहा है। ज़्यादातर जगहों पे तो इंसान प्रेम करता है अपनी सोच से या अपनी विचारधारा से, परंतु वह उसको नुकसान ही देती है। वह सत्य को या रियलिटी को देख ही नहीं पाता है। तो आपको अपने स्वभाव को ट्रेन करना पड़ता है, जिसके लिए अलग अलग क्रियाएं हैं, जैसे ध्यान है, भजन है, भक्ति है, जिसमें आप अपने मन को समझाते हैं कि कैसे आपको मन में प्रेम के भाव को उत्पन्न करना है, जागृत करना है, और कैसे स्थिर करना है और कैसे उसको आगे बढ़ाना है। जितने भी मार्ग हैं जो आपको अध्यात्म की ओर लेके जाते हैं, वो आपको अपने मन को और अपने स्वभाव को कंट्रोल करने में सहायता करते हैं और सक्षम बनाते हैं। अब जब आपने ये सीख लिया कि कैसे आप प्रेम को जागृत कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप इन्हीं मार्ग से करें, आप नॉर्मली भी कर सकते हैं। आप सिर्फ बुद्धि से, या जो एक कहा जाता है कि मानसिक योग है, जिसमें आप अपनी सोच से ही सही प्रेम को जागृत कर सकते हैं। पर वह सही प्रेम या आध्यात्मिक प्रेम या ट्रू लव वो है क्या? उसकी एक पहचान ये है कि जो आध्यात्मिक प्रेम होता है वह हमेशा अनकंडीशनल होता है। उसमें बदले में कुछ लेने की भावना नहीं होती है, उसमें सिर्फ दिया जाता है और बदले में कुछ मिले इसकी भावना का उत्पन्न होने से पहले ही त्याग कर दिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि आपके माँ है और साथ ही में कोई और स्त्री है जिसको आप नहीं जानते, आप दोनों को ही बराबर तरीके से प्रेम करें। आपको कोई मदद करे या आपका कोई दुश्मन हो, आप दोनों को बराबर तरीके से प्रेम करें। आपको कोई अच्छी बातें कहे या आपको कोई गाली दे, आप दोनों को बराबर तरीके से प्रेम करें। मिनिस्टर है या फिर कोई भिखारी है, आप दोनों को बराबर तरीके से जो है ट्रीट करेंगे या प्रेम करेंगे। बदले के भाव में आप नहीं आएंगे, तो वह एक आध्यात्मिक प्रेम है। अब इस प्रेम में आप कहेंगे कि हमारा नुकसान बहुत हो सकता है, कि मान लीजिए कि कोई आपको नुकसान पहुंचा रहा है परंतु आप तो उसको प्रेम ही करेंगे। तो ऐसा नहीं है। प्रेम करना एक तरफ है, लेकिन लॉजिकल और रैशनल रहना, अपने विवेक का इस्तेमाल करना और बुद्धि का इस्तेमाल करना, ये दूसरी तरफ है। आपका दुख है या आपको कोई परेशान कर रहा है तो आप उससे दूरी बना सकते हैं, पर यह जरूरी नहीं है कि आप उससे प्रेम करना बंद कर दें। आप दूर रहकर भी किसी व्यक्ति से या किसी वस्तु से उतना ही प्रेम कर सकते हैं जितना आप उसके साथ रहकर कर सकते हैं। और यही भाव या यही प्रेम आध्यात्मिक प्रेम होता है, यही उस प्रेम का मूल है। इसमें एक और पहचान है कि जब आप किसी से आध्यात्मिक प्रेम करते हैं या जब आपके मन में आध्यात्मिक प्रेम जागृत होता है, तो आप डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि आप सिर्फ किसी व्यक्ति से या सिर्फ किसी चीज से प्रेम करते हैं। जैसे अगर मेरे को अकारण ही किसी से प्रेम करना है, तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि मैं इन व्यक्ति से तो प्रेम करता हूँ पर मैं इनसे नहीं करता। जब कोई कारण ही नहीं है तो मैं दोनों से बराबर ही प्रेम कर पाऊंगा। और अगर कोई कारण है तो वह आध्यात्मिक प्रेम नहीं रहा। यह इतना सरल नहीं है, सुनने में चाहे अटपटा लगे या अजीब लगे, पर यह ही अध्यात्म में उन्नति का मार्ग है। प्रेम में जिस चीज से, जिस वस्तु से या जिस व्यक्ति से आप प्रेम करते हैं, उसको ब्लॉसम होने देना ही प्रेम है। उसको अपने समीप रखना या उसको बांध लेना या उसको सजा देना प्रेम नहीं हो सकता है। क्योंकि प्रेम में दूरी मैटर नहीं करती है, प्रेम में ज़रूरतें मैटर नहीं करती हैं, प्रेम में आपका फ़ायदा मैटर नहीं करता है।
और जब आप ऐसा प्रेम करते हैं तो आप माने या ना माने, जिससे आप प्रेम करते हैं वो तो ब्लॉसम हो ही पाया, परंतु आप भी इमोशनली, स्पिरिचुअली, मेंटली बहुत ही ब्लॉसम करते हैं। यहाँ तक कि आप ये देखेंगे कि यदि आपके मन में ये शुद्ध प्रेम के भाव जागृत हैं, तो सांसारिक जीवन में भी, चाहे आपको सुनने में ऐसा लगेगा कि नुकसान हो, परंतु सांसारिक जीवन में भी आपको बहुत ही संतुष्टि मिलेगी और बहुत ही प्रगति मिलेगी। अब ये कैसे होता है? वीडियो बहुत लंबी हो गई है, वरना मैं आपको एक और कहानी सुना देता, परंतु इसको ईश्वर की कृपा मान लीजिए। जिस व्यक्ति का मन शुद्ध है उसको ईश्वर बहुत प्रेम करते हैं। जैसे मैंने कहा, प्रेम ब्लॉसम करने में हेल्प करता है, तो जिसको ईश्वर ही प्रेम करते हैं वह व्यक्ति तो खिलेगा ही खिलेगा। आज की वीडियो में इतना ही। यदि यहाँ तक सुन लिया है तो मान लीजिए कि आप बहुत ही धैर्यवान व्यक्ति हैं। अब हम अगली वीडियो में मिलते हैं फिर।